Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 8 of class 12th, that is Human Health and Diseases. So before we proceed this video, let us first revise what we have read in the earlier session. In the earlier session, we have discussed about a fatal disease called AIDS. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. The AIDS is caused by a virus called as HIV virus. HIV stands for Human Immunodeficiency Syndrome. This HIV virus belongs to the family of retroviruses. Then the question arises is how the AIDS is transmitted. So AIDS can be transmitted through the following methods. The first transmission procedure is by the sexual contact with the infected person. Then it can also be spread by the transfusion of contaminated blood and the blood products. Third is sharing the infected needles. This can also be a main mode of transmission for various drug abuses. Then, the AIDS can also be transmitted from the infected mother to her child. But the important thing to note here is that it does not transmit through the touch or the physical contact. It only spread through the body fluid. Then we have read about the life cycle of AIDS, how it spread inside the human body. So first it enters into the macrophages. These HIV virus has an envelope which contains its RNA genome. So whenever this virus enters into the human body or the macrophage cell, what it does is that its RNA genome is replicate and form the viral DNA. Here it requires an enzyme called the reverse transcriptase. With the help of this enzyme, it converts its RNA genome into the viral DNA. Then this viral DNA get incorporated into the host cell and produce the viral particles. Then these viral particles enter into the T lymphocytes and where it also divides and produces its viral progenies. And through this, the cycle is repeated and these viruses attack the other T lymphocytes. This virus directly affects the T helper lymphocyte of our immune response and thus reduce the immunity of the infected person, and it reduces so much of immunity that the infected person's body is not even able to defend itself against the normal antigens. What are the effects that or the symptoms that can be seen throughout this disease are fever, diarrhea, weight loss, and all this happen due to the decrease in the number of T lymphocytes and thus reduces the body immunity. Then one of the more important question was the diagnostic test. The diagnostic test of AIDS is ELISA. ELISA stands for Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Now let's proceed with our video. In this session, we will read about the prevention measures for the AIDS disease as well as about the cancer. Prevention of AIDS. As AIDS has no cure, prevention is the best option. तो हमें ये पता है कि एड्स का कोई इलाज नहीं है इतना हमारे पास फ़िलहाल, तो जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है इससे बचाव किया जाए. Moreover, HIV infection more often spread due to the conscious behavior patterns and is not something that happens inadvertently like pneumonia or typhoid.
यहाँ पे जो HIV इन्फेक्शन की बात हो रही है, वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि इसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न है जिसके थ्रू ये HIV फैलता है, और ये वाला जो इसका पैटर्न है वो निमोनिया और टाइफाइड वाली बीमारियों से थोड़ा सा हटके है. Of course, infection in blood transfusion patient, newborn from the mother, etc. may takes place due to the poor monitoring. हाँ, पर इतना ज़रूर है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है पेशेंट के अंदर और गलती से अगर वो ब्लड किसी भी इन्फेक्टेड बंदे का हुआ तो उससे ये जो इन्फेक्शन है वो फैल सकता है, या फिर जो कोई भी जो मदर है जो HIV इन्फेक्टेड है उससे उसकी चाइल्ड को भी फैल सकता है अगर ढंग से और टाइम पे इस चीज़ का ध्यान ना रखा जाए. The only excuse may be ignorance, and it is rightly said, don't die of ignorance. और ये जो ऊपर वाले दोनों केस हो रहे हैं, यानी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला केस हो गया या फिर इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड के अंदर ये स्प्रेड हुआ, ये दोनों के दोनों चीज़ें किसकी वजह से हो सकती हैं? प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने की वजह से, प्रॉपर ध्यान ना देने की वजह से. इसीलिए किसी ने सही कहा है कि इग्नोरेंस को कभी भी किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और स्पेशली मरो तो एटलीस्ट इग्नोरेंस की वजह से ना मरो. In our country, the National AIDS Control Organization, NACO, and other non-governmental organizations, NGOs, are doing a lot to educate people about AIDS. तो हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कॉमनली नाको भी बोला जाता है. और इसके अलावा कुछ और NGOs भी इसके साथ जुड़े हुए हैं और वो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा सके. WHO has started a number of programs to prevent the spread of HIV infection. वहीं अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं ताकि लोगों के अंदर इस एड्स या फिर HIV इन्फेक्शन के बारे में जागरूक किया जा सके. मेकिंग ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक्स सेफ फ्रॉम द HIV, इंश्योरिंग द यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजेबल निडल्स एंड सिरिंज in the public and private hospitals and clinic, free distribution of condoms, controlling drug abuse, and promoting regular checkups for the HIV in the susceptible population are such steps taken up. तो कौन कौन से जो कदम हैं वो उठाए गए हैं ताकि लोगों को इस बीमारी के खिलाफ जागरूक किया जा सके. तो उनमें से हैं कि जो ब्लड बैंक हैं यानी कि जहाँ से नॉर्मली लोग ब्लड लेते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए, वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखी जाए कि किसी भी जो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड है वो किसी भी तरीके से मिक्सअप ना हो पाए वहाँ पे. इसके अलावा जितनी भी जो निडल्स वगैरह यूज़ की जाती हैं अलग अलग तरीके के इंजेक्शन्स के लिए, वहाँ पे डिस्पोजेबल निडल्स का यूज़ हो, यानी कि एक निडल को एक ही इंडिविजुअल के लिए यूज़ किया जाए. इसके अलावा जो पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी और ज़्यादा एजुकेशन फैलाई जाए, जो ड्रग अब्यूज़ वगैरह हैं उनको कंट्रोल किया जाए और टाइम टू टाइम पब्लिक के अंदर चेकअप होते रहें, तो उनकी मदद से जो इस बीमारी को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं. Infection with the HIV or having AIDS is something that should not be hidden, since then the infection may be spread to many more people. पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो HIV या एड्स हो, तो उसको ये चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से और भी बहुत सारे लोगों के अंदर ये बीमारी फैल सकती है. The HIV or AIDS infected people need help
and sympathy instead of being shunned by the society. पर ऐसे लोग जिनको ये बीमारी हो रखी है तो इनको मदद की ज़रूरत है और सहानुभूति की ज़रूरत है, ना कि उनको कंप्लीट सोसाइटी से बैन करने की ज़रूरत है. Unless society recognizes it as a problem to be dealt with in a collective manner, the chance of the wider spread of the disease increases manyfold. और जब तक सोसाइटी अगर जागरूक नहीं हुई और मिलके काम नहीं करेगी इस बीमारी को टैकल करने के लिए, तो इस बीमारी के बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा हो सकते हैं. It is a malady that can only be tackled by the society and the medical fraternity acting together to prevent the spread of this disease. तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए यानी कि सॉल्व करने के लिए सोसाइटी को भी और उसके साथ साथ जो मेडिकल फर्टर्निटी है यानी कि जो हॉस्पिटल्स या फिर जो एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं उनको मिलके काम करना पड़ेगा, तभी जाके इस बीमारी की जो स्प्रेड है उसको रोका जा सकता है. अब हम लोग एक और बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ कैंसर. द कैंसर is one of the most dreadest disease of human being and is a major cause of death all over the globe. तो जो कैंसर है ये एक बहुत ही फैटल बीमारी है ह्यूमन बींग्स के अंदर और बहुत सारी मौत का कारण भी है दुनिया के अंदर. More than 1 million Indians suffer a cancer and a large number of them die from it annually. तो ऐसे ही मिलियंस ऑफ इंडियन हैं यानी कि हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रखी है और उनमें से बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती है इस बीमारी से हर साल. द मैकेनिज्म्स दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैंसर, इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैज़ बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया of research in biology and medicines. तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं कैंसर के डेवलपमेंट में, यहाँ उसके बारे में बात हो रही है कि किस तरीके से ये फैलता है, कैसे इनके अंदर जो सेल हैं वो ऑन्कोजेनिक सेल्स बनती हैं. ऑन्कोजेनिक सेल्स का मतलब होता है कैंसरस सेल बनती हैं, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और कैसे इस कैंसर को और एरिया के अंदर स्प्रेड होने से कैसे रोका जा सकता है. इन एरियाज़ के ऊपर आज भी बायोलॉजी में रिसर्च चल रही है. इन आवर बॉडी द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज़ हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड. तो हमारे शरीर के अंदर कितनी सेल ग्रोथ होगी और कितना डिफरेंशिएशन होगा ये कंट्रोल्ड मैनर में होता है और अलग अलग चेक पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे ये कोई भी अगर सेल डिवीज़न हो रहा है या डिफरेंशिएशन हो रहा है तो उन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है. इन कैंसर सेल देयर इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स. पर अगर हम जब कैंसर सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर वाला जो मेथड हमने बोला कि कंट्रोल्ड तरीके से डिफरेंशिएशन और ग्रोथ होगी, ये मैकेनिज़्म यहाँ काम नहीं करता है. यहाँ की मतलब यहाँ आने के बाद ये मैकेनिज़्म फेल हो जाता है. नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल्स इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. तो जो नॉर्मल सेल्स होती हैं हमारे शरीर के अंदर उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि ये जो सेल हैं ये एक दूसरे सेल्स के साथ कांटेक्ट में रहती हैं और उनके अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ना हो इसका ध्यान रखती हैं. यानी कि कोई भी जो सेल हैं वो अपने आसपास में कहीं भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होने देती हैं, क्योंकि हमने ऊपर ही क्या बोला कि हमारे शरीर के अंदर जो सेल ग्रोथ होगी वो कम्प्लीटली कंट्रोल्ड होती है और बहुत स्पेसिफिकली मॉनिटर किए जाती है.
तो ये तो थी नॉर्मल सेल की बात कि उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कांटेक्ट इनहिबिशन की, यानी कि ये सेल्स अपने आसपास की जो दूसरी सेल हैं उनके अंदर अनकंट्रोल्ड तरीके से जो ग्रोथ हैं उसको नहीं होने देंगे। कैंसर सेल अपीयर्स टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, पर वो सेल जो कि इन्फेक्टेड हैं यानी कि जिनके अंदर कैंसर हो गई है, उन सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने जब नॉर्मल सेल की बात करी तो वो तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होने दे रही थी, पर ये जो कैंसर सेल हैं इनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो कैंसरस सेल हैं उनके अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कहीं भी हम कैंसर सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे ये मेंशन होना बहुत ज़रूरी है कि इनके अंदर अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रोथ होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, कैंसर सेल just continues to divide, giving rise to a mass of cells called tumors. अब चूंकि जो कैंसर सेल हैं उनके अंदर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं है, यानी कि वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रही हैं, तो क्या होगा कि वो लगातार ग्रोथ करती जाएंगी और पूरा एक मास बना लेंगी सेल्स का, यानी कि पूरा क्लस्टर सा बना लेंगी सेल्स का, और उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर बोलेंगे। द ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप। तो ये जो ट्यूमर हमने बोला अभी अभी बना है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से, जो सेल का मास बना है वो क्या करेगा, वो दो टाइप का हो सकता है जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। तो वो दो टाइप कौन कौन से हैं, बेनिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट। तो इन्हीं दोनों टाइप के ट्यूमर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहला है बिगनाइन ट्यूमर। It normally remain confined to their original location and do not spread to the other part of the body and cause the little damage. तो जो सबसे पहला ट्यूमर है दैट इज़ बिगनाइन ट्यूमर, ये क्या होता है इसके अंदर कि जहाँ भी जिस भी लोकेशन के ऊपर ये इन्फेक्शन हुआ है वो वहीं तक रहता है, वो अपनी आसपास की सेल्स के अंदर नहीं फैलता है। यानी कि अगर ये इस सेल के अंदर हुआ है तो बस ये यहीं तक रहेगा, जो आस पड़ोस वाली सेल्स है वहाँ तक ये स्प्रेड नहीं होगा। दूसरा जो ट्यूमर था दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑन द अदर हैंड आर द मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड द नियोप्लास्टिक और द ट्यूमर सेल। वहीं जो दूसरे टाइप का ट्यूमर है दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसके पास क्या है, प्रोलिफरेटिंग सेल्स, यानी कि जो कंटिन्यूस में और डिवाइड होती जा रही हैं उनका पूरा एक मास मौजूद है इसके पास। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स होंगी उनको हम क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक सेल या फिर ट्यूमर सेल। These cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissues. तो ये जो नियोप्लास्टिक या फिर जो ट्यूमर सेल्स हैं ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं और क्या करती हैं, इन्वेड करती हैं। इन्वेड करने का मतलब होता है कहीं किसी के घर में घुसना, तो यानी कि जो दूसरी सेल हैं उनके अंदर भी ये एंटर ज़रूर होंगी। एंड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल सेल। अब अगर आसपास के सेल्स को भी ये अटैक कर रही हैं तो यानी कि जो आसपास के टिश्यूज़ हैं उनके अंदर भी ये नुकसान पहुंचाएंगी। एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो दे ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल बाय कंपीटिंग फॉर द वाइटल न्यूट्रिएंट। अब चूँकि ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसके अंदर क्या है, प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं, यानी कि कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स हैं जिनको हम नियोप्लास्टिक सेल भी बोल रहे हैं। ये क्या कर रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड हो रही हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इनकी ग्रोथ भी ज़्यादा हुई और इसीलिए जो नॉर्मल सेल है जिसके अंदर इन्होंने अटैक किया है उसके जो न्यूट्रिएंट होंगे ये उसके लिए भी कंपटीशन करेगी
यानी कि उस नॉर्मल सेल को उसकी ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट हैं वो नहीं मिलेंगे, और उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो कौन ले लेंगी, ये नियोप्लास्टिक सेल्स यूज़ करेंगी। Cells lot from such tumor reach different site through blood, and wherever they get launched in the body, they cite a new tumor there. तो ये जो नियोप्लास्टिक सेल हैं ये क्या करेंगी, ब्लड के थ्रू हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ट्रैवल करेंगी, और जहाँ भी जाएंगी वहीं पे नया ट्यूमर बनाना शुरू कर देंगी, यानी कि नई कैंसर सेल बनाना शुरू कर देंगी। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड द मेटास्टेसिस इज मोस्ट feared प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। और किसी भी सेल की, कैंसरस सेल की वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर वो एक जगह से ब्लड के थ्रू होते हुए अलग अलग बॉडी के लोकेशन तक पहुँचे और वहाँ पे नई ट्यूमर बनाना शुरू कर दे, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। और मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में ये जो मेटास्टेसिस वाली प्रॉपर्टी है इन नियोप्लास्टिक सेल्स की, ये सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है। तो एक बार से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कैंसर के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके अंदर हमने 4 या 5 बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी हैं। एक बार हम उन टर्म्स को रिवाइज करेंगे। जो पहली टर्म हमने पढ़ी है वो ये है कांटेक्ट इनहिबिशन। तो जो कैंसरस सेल की अगर प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कैंसरस सेल, तो उनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि उनके अंदर कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता है। क्या होता क्या है ये कांटेक्ट इनहिबिशन, यानी कि जो कोई सेल है वो अपनी आस पड़ोस की जो सराउंडिंग वाली सेल्स हैं उनकी जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल्ड करके रखती है, उसको रेगुलेट करवाती है। पर अगर हम कैंसर सेल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि कैंसर सेल में तो होता यही है कि जो सेल हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे और प्रोलिफरेट करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा ट्यूमर के बारे में। तो ट्यूमर क्या होगा कि जो कैंसर सेल है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहेगी, क्योंकि उसके पास कांटेक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो उससे क्या होगा कि सेल्स के बहुत बड़े बड़े मास या फिर क्लस्टर बनने शुरू हो जाएंगे, और इन्हीं क्लस्टर्स को हम ट्यूमर्स बोलते हैं। अब ये जो ट्यूमर है ये 2 टाइप का हो सकता है। पहला है बेगनाइन और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द बेगनाइन एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो जो सबसे पहला डिफरेंस और जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो बेगनाइन ट्यूमर है अगर वो किसी सेल में हो रहा है तो वो सिर्फ वहीं तक रहता है, वो दूसरे जो आसपास की सेल हैं उनको अफेक्ट नहीं करता है, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन तक ही कन्फाइंड रहेगा, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक नहीं पहुंचेगा। वहीं जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या है, बहुत जल्दी जल्दी प्रोलिफरेट होता है और क्या करता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। किस चीज़ के थ्रू, ब्लड के थ्रू, और जिस भी हिस्से में पहुंचेगा वहीं जाके नई ट्यूमर बनाना शुरू कर देता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। तो यानी कि बेगनाइन ट्यूमर क्या है, पहला डिफरेंस अपनी ओरिजिनल लोकेशन तक रहता है। वहीं जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो बहुत अलग हिस्सों में फैल जाता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो बेगनाइन ट्यूमर है इसके पास मेटास्टेसिस वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। वहीं जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसके पास जो मेटास्टेसिस वाली प्रॉपर्टी है वो होती है। जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो बेगनाइन ट्यूमर है वो थोड़ा कम फेटल है एज़ कंपेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। वहीं जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो बहुत ज़्यादा फेटल है और उससे जो डेथ के चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं।